how to integrate any term, especially we learn about their formula. Okay, basic formula of integration is, as you know, x to the power n is equal to x to the power n plus 1 over n plus 1. Integral of ex is also itself e to the power x, and 1 upon x integral is 1 log x. The differential of 10x is, we don't know, but the difference, sorry, integral of sec x 10x is sec x. Similarly, the differential of integral of sec square x is 10x. But we don't know, the integral of 10x. Okay, बाद में देखेंगे. Now, yes. साईराम सर. साईराम. सर सॉरी लेट हो गए. सर क्या पढ़ा रहे हो आप? बस जस्ट शुरू कर रहा हूँ अभी. ओके सर. ओके, सो नाउ सिंपली हम लोग कल बात कर रहे थे कि सपोज यू हैव y is equal to e to the power x plus cos x plus x to the power 3/2 plus k, or not k, it is 2. If you have such type of equation, y is equal to e to the power x plus cos x plus x to the power 3/2 plus 2. So the integral of this equation will be like that. So y dx is equal to integral of first e to the power x, integral of cos x dx plus integral of x to the power 3/2 dx, and finally integral of 2 into dx. बच्चों, आपने कुछ नहीं किया, you separate or 1 2 3 4 term and write dx and dx. This dx is the symbol which shows that given term is integrated with respect to x. So as you know, what is the integral of this term? Raj Ojha? According to our formula, what is the integral of ex? Sir, ex. Good, ex. Plus Nishant, what is the dimension of cos x is? Sin x. Sin x, very good. Remember, इसका जो डिफरेंशियल होता है, it is minus sin x, हाँ? Plus नेहा, x power 5/3 upon 5/3. Sir, सर आपकी आवाज नहीं आ रही. बोर्ड भी नहीं दिख रहा. 5/2 होना चाहिए ना? नो बेटा, हाँ? x to the power 3/2.
हाँ सर सॉरी मैंने गलती से लिखकर बोल दिया। हाँ, कितना सर हुआ मैंने इसका? क्वेश्चन गलत लिख दिया था। अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। हाँ, अब समझ में आ रहा है क्या? यस सर यस सर। तो what will be the integral of x to the power 3 by 2? x to the power 5 by 2 upon 5 by 3 means Yes, 2 very good. x 5 by 2 upon सेम सेम वही आता है, जो पावर होता है वो नीचे कर दो, प्लस लास्ट वन सराउंडिंग, इसका कितना होगा? टू का इंटीग्रल कितना होगा? 2x. Sir, 2. टू, नो नो 2x. Sir, 0. 2x. नो नो, Sir, 2x, sir. 2x, गुड रोनित। Why 2x? Yes, sir. Because 2 is a constant, so out आ गया। dx का होता है x, dx का इंटीग्रल x, dy का y, dz का z, तो कितना हो जाएगा ये? 2x। अब देखो, if you differentiate 2x, if you differentiate 2x, तो क्या मिलेगा आपको? 2. 2, okay। If you differentiate this term, whole term, so answer will be this one. If you differentiate sin x, so you will be cos x. Or if again you differentiate ex, so you get ex. लो वापस आ गए। आपसे मैंने कहा था ना, if you first differentiate then integrate, so we get original value, and vice versa. If you first integrate then differentiate, again we will get same value. So this shows that differential and integral is very 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 just opposite reactions. This is simple formula. Now we turn to a very some special formula of this. इसे बोलेंगे डबल फंक्शन। इट इज अ डबल फंक्शन। याद है बेटा, इसमें आपको डिफरेंशियल में था ना, फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशियल ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट फंक्शन। सपोज कहीं लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स, so we can't integrate this term with the help of known formula। जो आपको पहले से पता है उस फार्मूले से आप इसको नहीं निकाल सकते। So here we will apply functions formula। okay, so देखिए, आप लिखिएगा if u and v, ऐसे if u and v are the function of x, if u and v are the function of x, then u into v dx is equal to integral u into v dx, u into v dx. Remember, u is first function, v is second function. So the formula of this is, ध्यान से सुनना बेटा, आराम से पहले देखना, इसके बाद लिखना। कोई डाउट हो 10 बार पूछना, बताऊंगा। थोड़ा सा टफ फार्मूला है। This says that if u and v are the function of x, then the integral of this function is first function, okay, u into integral of second function,
माइनस। अब आप कहोगे सर ये तो वही जो भी चल रहा है, वहां भी तो यही था, फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशियल ऑफ सेकंड फंक्शन, वहां प्लस था यहाँ माइनस हो गया, राइट? बट नॉट, इसमें ही से शुरुआत होती है कि फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस इंटीग्रल माइनस फंक्शन डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रल सर ऑफ आप किस सर सेकंड वीडियो फंक्शन। सर वीडियो और सर आवाज दोनों नहीं। यस, सर आपकी आवाज और वीडियो दोनों नहीं आ रहे। यस बच्चों, यस, मेरी आवाज आ रही है? यस सर। यस सर। मैं बेटा मैं मेरा नेट चला गया था एकदम, ब्रॉडबैंड था वो, उसका वो कनेक्शन चला गया था, इसलिए ऐसा हुआ है। ठीक है ना? ओके बेटा, मैं फिर से देखता हूँ। ओके, सो यस, दिखाई दे रहा है बेटा? यस सर। यस सर। ओके यस सर। ओके, थैंक यू बेटा, थैंक यू।
तो बेटा यहां देखो, फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस इंटीग्रल ऑफ होल डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट फंक्शन एंड अगेन इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन। यानी कि देखो इसमें क्या हो रहा है, सेकंड फंक्शन का 2 बार हो रहा है इंटीग्रल, और फर्स्ट फंक्शन का फर्स्ट टाइम कुछ नहीं है और सेकंड टाइम क्या हो रहा है, सिंगल। ओके, अब one thing remember always in this formula, in previous case that is differential, you are free to assume this is first function and that is second function, either this is first and that is the second, no issue, no problem, because ऐसा क्यों था, only it is because of there is positive sign, but in this case there is negative sign, so you can't say कि सर मेरी इच्छा तो ये है कि मैं इसको फर्स्ट मानूंगा या मानूंगी and this is one second, no, ये देख करके माना जाता है। अब वो कैसे होगा, अब समय समय पे मैं आपको बताऊंगा। ओके, सो प्लीज राइट दिस फार्मूला for u and v dx, first function integral of second function minus integral bracket लगाना differential of first function again integral of second function and then बाहर dx। ओके, अब देखिएगा बेटा, ये नोट कर लिया? यस सर। हाँ बेटा, अब ध्यान दो, अब मैंने आपसे कहा कि x sin x dx, ठीक है, x sin x dx, इसे इंटीग्रेट करना है या इसको इंटीग्रेट करना है। अब यहां पर दिस इज फर्स्ट फंक्शन एंड दैट इज सेकंड फंक्शन। निशांत, क्या आप मुझे बता सकते हो कि मैंने इसे फर्स्ट माना है, इसको सेकंड माना, सही माना है, गलत माना है? सर सही माना है। क्यों? सर क्योंकि x पहले आ रहा है। पहले आ रहा है, ओके, पर जो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व है ना? यस सर। लेकिन बेटा मैं आपको बता दूं कि यदि ये किसी ने मुझको ऐसे लिखा होता sin x into x dx, तब भी मैं बेटा इसी को फर्स्ट मानता, इसको सेकंड मानता। अब ये समझना इस बात को कि ये कैसे सॉल्व होंगे। इसमें बेटा ध्यान रखना पड़ता है कि फर्स्ट फंक्शन किसको माने और सेकंड फंक्शन किसको माने। दिस इज अ वेरी बिग प्रॉब्लम इन दिस टाइप ऑफ इक्वेशन। बच्चों रिमेंबर ऑलवेज, इंटीग्रेशन इज मोर टफ देन डिफरेंशियल। इंटीग्रेशन के जो न्यूमेरिकल्स हैं, इंटीग्रेशन की जो प्रॉब्लम्स हैं, they are much difficult as compared to differential। कोई मुझे इसका आंसर दे सकता है? क्यों ऐसा होता है? कोई भी है, कोई गेस करो। सर क्योंकि टाइम ज्यादा लगता है इसमें। पागल। सर क्योंकि डिफरेंशियल में हम किसी को भी फर्स्ट और सेकंड टर्म ले सकते हैं, लेकिन जो ये इंटीग्रल होता है उसमें नहीं, नो बेटा, ये तो सर मैं एक जनरल बात कर रहा हूँ कि इंटीग्रल का कोई भी सवाल हो, कोई भी न्यूमेरिकल हो, वो डिफरेंशियल से ज्यादा टफ होता है। कोई इसका आंसर दो, लॉजिक का आंसर दो।
सर फॉर्मूले सिंपल रहते हैं डिफरेंशियल के। ना ना ना, सर तोड़ना इजी होता है एज कम्पेयर टू जोड़ना। क्या बात है बेटा, क्या बात है बेटा, इस बात पर तो तालियां बनती है। गुड, वेल डन। एक्चुअली दिस इज द मोरल वैल्यू ऑफ दिस क्लास, टुडे क्लास। एक्चुअली ये उसकी बिल्कुल एक दुनिया में जोड़ना बहुत मुश्किल है, तोड़ना बहुत आसान होता है। डिफरेंशिएशन में दो लोगों के बीच में डिफरेंस डेवलप करना बड़ा आसान है, लेकिन उनके बीच के डिफरेंस को खत्म करना, उन्हें जोड़ना, नो डाउट इज वेरी वेरी टिपिकल टास्क। वेल डन बेटा, वेल डन निशान। दिस इज द लॉजिकल आंसर। हालांकि इसका कोई संबंध नहीं है इससे, लेकिन ये है, आप समझ लें। अब यहां पर बेटा देखो क्या होता है, x sin x dx। इसमें ये ध्यान रखना चाहिए क्योंकि जो फर्स्ट बेटा उसका हर बार या तो कुछ नहीं होगा या डिफरेंशियल होगा। ध्यान देना बेटा, या तो कुछ नहीं होगा या फिर डिफरेंशियल होगा। इंटीग्रल सेकंड का होता है, तो कोशिश ये होनी चाहिए कि फर्स्ट टर्म वो लेना चाहिए जिसका डिफरेंशियल करने पर उसकी वैल्यू घटती हो। साइन एक्स को यदि आप लेते फर्स्ट फंक्शन, तो साइन एक्स का डिफरेंशियल क्या होता है, cos x, cos x और cos x का क्या होता है, माइनस माइनस साइन एक्स। माइनस साइन तो माइनस साइन एक्स का फिर कर दो तो फिर क्या आ जाएगा, cos x, cos का साइन, साइन का cos, cos का ये होता रहेगा। लेकिन x है तो x का डिफरेंशियल कितना होगा, 1, राइट, और 1 का डिफरेंशियल कितना होगा, 0। 0 क्यों, कोई कांस्टेंट है। अच्छा, x स्क्वायर है, x स्क्वायर का कितना होगा डिफरेंशियल, 2x 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 का कितना होगा डिफरेंशियल, 2 का कितना होगा डिफरेंशियल, 0 0 समझ में आ गया। तो ये जो टर्म डिफरेंशियल के बाद 0 की तरफ जा रही हो, तो प्रेफरली हम लोग उसे प्रेफर करते हैं कि उसी को फर्स्ट फंक्शन माने। हाँ, कभी कभी क्या हो जाएगा, मान लो यहाँ होता है साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, तो अब कुछ नहीं कर सकते आप, आपकी मर्जी है। फिर आप दोनों में से किसी को भी क्या कर सकते हो, मान सकते हो। हाँ, लेकिन अब चूंकि यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन है, तो हमने क्या किया है, हम इसको कर रहे हैं। अब देखो बेटा ध्यान से देखना ये कैसे सॉल्व होगा। रूल क्या कहता है, ऊपर लिखा हुआ है फर्स्ट फंक्शन, फर्स्ट फंक्शन मतलब x, तो x इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन sin x dx माइनस इंटीग्रल डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट फंक्शन dx upon dx and again integral of second function dx। ओके, यहां देखो x sin x का कितना होता है इंटीग्रल, minus cos x x वेरी गुड, माइनस cos x, cos x नहीं, cos x, ठीक है। ओके, माइनस इंटीग्रल कितना हो जाएगा ये, 1 अच्छा, इंटू साइन एक्स का इंटीग्रल कितना हो जाएगा, अगेन माइनस कॉस एक्स, और ये बाहर का लिखा हुआ है dx। ओके, माइनस को कर दो, माइनस एक्स कॉस एक्स माइनस 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 प्लस, क्या आ गया, cos x dx एंड लास्ट लाइन माइनस x cos x प्लस cos x का कितना हुआ इंटीग्रल, फिर से कीजिए, sin x sin x सो योर आंसर इज x sin x का कितना हो जाएगा, माइनस x cos x प्लस sin x।
x cos x plus sin x. This is the answer of this is the answer. Okay. Minus x cos x sin x. समझ में आया बेटा? Please note down. Okay. एक मुझे याद आ गया तो मैं इसको कर रहा हूं. sin x cos x dx. इसका करना है अपने को इंटीग्रल. ठीक है. इंटीग्रेट दिस. तो हम लोग क्या करेंगे, इसको ऐसे लिख देंगे i इज इक्वल टू sin x cos x dx. ठीक है. i इज इक्वल टू sin x cos x dx. अब यहां पर बेटा आप देख सकते हो एक साइन है एक cos है. सो देयर इज नो मीनिंग कि दिस फर्स्ट एंड दिस सेकंड, चाहे इसको मान लो एक ही बात है. तो जो लिखा है हम उसी को मान लेते हैं. रूल क्या है? फर्स्ट फंक्शन दैट इज sin x. फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन. अब मैं यहां पे लिखूंगा डायरेक्ट. कितना है अब तक इंटीग्रल? cos x का कितना हो जाएगा? sin x. ठीक है बेटा. फर्स्ट फंक्शन sin x, इंटीग्रल ऑफ सेकंड की cos x कितना आ गया? sin x माइनस डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट फंक्शन. डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट फंक्शन कितना है? sin x माइनस cos x. क्या होगा? cos x. cos x cos x sin x का. ओके. अगेन इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन cos x, इसका बेटा कितना हो जाएगा? sin x. sin x. sin. बाहर ये dx लगा हुआ है. अब देखो जी, अब इसमें कैसे होता है वो बता रहा हूं मैं आपको. i इज इक्वल टू कितना आ गया? sin x इंटू sin x कितने होते हैं? sin square sin x square x square. वेरी गुड. माइनस ये क्या लिखा हुआ है? ये लिखा हुआ है sin x cos x dx. अब बेटा ये तो वही लौट के फिर वापस आ गए. दिखाई दे रहा है क्या? Yes, sir. Yes sir. तो ऐसे तो जिंदगी भर करते रहेंगे हम लोग, कभी इसका आंसर आएगा ही नहीं. तो यहाँ पे हम लोग मैथमेटिकल चीटिंग करेंगे. ये क्या लिखा हुआ है? i. यस, i इज इक्वल टू कितना है? इंटीग्रल sin x cos x dx, राइट. तो क्या हो जाएगा अगली स्टेप में? i इज इक्वल टू sin स्क्वायर x माइनस i. ऐसा लिख सकते हो? Yes, Yes sir. sir. Yes sir. गुड. इस i को यहां ले आओ. कितना हो जाएगा? 2i. 2i इज इक्वल टू कितना आ गया? sin स्क्वायर x. तो i इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? sin square x by 2. यही तुम्हारा आंसर है.
I इज इक्वल टू साइन स्क्वायर अपॉन 2। मैं ये जानता हूं कि ये थोड़ी सी प्रॉब्लम दे रहा होगा आपको, है ना, लेकिन डोंट वरी, धीमे धीमे ये सब सॉल्व हो जाएंगे। हो गया। अब देखो बेटा, मैं इस क्वेश्चन को कई तरीके से करके दिखाऊंगा मैं आपको आज, इसी क्वेश्चन को। ये आपने बेटा नोट कर लिया? Yes, sir. Yes, sir. ओके, थैंक यू। अगेन I इज इक्वल टू, ये हो गया। हम इसे सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी कर सकते थे। कैसे मालूम है पता आपको? लेट y इज इक्वल टू साइन एक्स, लेट y इज इक्वल टू साइन एक्स। प्यारे बच्चों, इफ यू राइट लाइक दैट, सो dy अपॉन dx इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा अपने को? cos x, ठीक है? ओके, सो dy इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? cos x dx। सही है? यस सर। हाँ, निशान करता अपना माइक पर रखना। ओके, dy is equal to cos x dx. Now substitute here, बेटा sin x कितना है? y cos x dx कितना है? dy अच्छा, अब इसका मतलब क्या है? इंटीग्रेट कर दो सिर्फ y को। कर दिया। y की वैल्यू कितनी है? sin x कोई दिक्कत? नहीं। आ गया वही? हाँ खुश? हाँ कौन सा अच्छा है? सर ये वाला। अच्छा ठीक है। ये सर दूसरा एग्जाम में चलेगा क्या किया तो? यस बेटा, यस यस यस। हर बड़े किस, अच्छा बेटा थोड़ा ध्यान रखना कि जरूरी नहीं है कि हर जगह सारे जगह फार्मूले, ये आपको ध्यान देना पड़ेगा कि कौन सा फार्मूला कहां पर एप्लीकेबल है। ठीक है ना? ये तो मैंने जानबूझ के ऐसा एग्जांपल लिया है कि जिसमें मैं बहुत सारे तरीके लगा सकता हूं। अब देखो, इसी को एक और से करते तरीके से करते हैं। इसमें 2 से डिवाइड कर दो, मल्टीप्लाई कर दो और 2 से डिवाइड कर दो। इसको ऐसा कर सकते हो क्या? यस सर। यस सर। तो इसमें से 1/2 को बाहर निकाल दो। 2 sin x cos x, जानते हो क्या होता है ये? sin 2x। अरे क्या बात है मेरे यार। ठीक है, ओके। क्या हम इसका इंटीग्रल कर सकते हैं? यस और नो? निशांत? यस सर। नहीं कर सकते। नो सर। क्यों? क्योंकि हमारे पास sin x का फार्मूला है, ना कि sin 2x। हाँ, लेकिन हम तो करेंगे, हम तो बेईमान लोग हैं, करेंगे। तो कितना आ जाएगा ये? साइन क्या जाएगा? माइनस cos 2x। लेकिन
आपको मैंने क्या सिखाया था कि जब हम जिस चीज को इलीगल तरीके से इम्प्लीमेंट करते हैं तो हम उसका फिर से डिफरेंशियल करते हैं, राइट? यस तो सर। यहाँ भी करेंगे, बस डिफरेंशियल में मल्टीप्लाई करते थे, इसमें डिवाइड करेंगे। तो d अपॉन dx इंटू 2x, राइट? सो माइनस cos 2x ओवर 2 इंटू 2x का कितना आएगा डिफरेंशियल? 2। सो आंसर इज माइनस cos 2x अपॉन 4। ये भी तरीका हो गया। अब यहाँ पर क्या है कि ऋतु गुस्सा हो रही है, वो ये बोल रही है कि सर ये आंसर तो अलग आया है। यस और नो? यस सर। यस सर। हाँ, नेहा भी गुस्सा हो रही है, वो भी करेगी इस तरीके से होती है। इसमें गुस्सा होने की जरूरत नहीं है। यदि हम इसे सॉल्व करेंगे बेटा तो आंसर वहीं पहुंचा देंगे उसको। cos 2x की वैल्यू होती है cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x, और उसको जब हम सॉल्व करते हुए जाएंगे तो हम लौट के वापस वहीं आ जाएंगे, कहां पर? sin स्क्वायर x अपॉन 2 पहुंच जाएंगे। क्योंकि ये इसके आगे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं आपको बता दूं केवल कि जैसे sin 2x होता है 2 sin x cos x होता है, वैसे ही cos 2x जो होता है वो cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x होता है। हम cos स्क्वायर को लिखेंगे 1 माइनस sin स्क्वायर, उसको करके सॉल्व करेंगे तो हम लौट के बेटा वहीं पहुंच जाएंगे। कहां पहुंचेंगे? sin स्क्वायर x अपॉन 2। प्यारे बच्चों, ध्यान देना बेटा कि इसमें आपको थोड़ी सी भी प्रॉब्लम आएगी, इसको ना भूलें आप, है ना? थोड़ी सी आपको प्रॉब्लम आएगी, उस प्रॉब्लम को आपको अभी करना पड़ेगा, है ना? सो इस बात को थोड़ा ध्यान देते हुए, है ना, आज आप लोग और प्रैक्टिस करेंगे। कल की क्लास में हम इनको और अलग अलग तरीके से डिफरेंट और करेंगे, डील करेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ जाएगा, ऐसा मुझे ऐसा लगता है ना? सो ध्यान रखिएगा, बिल्कुल भी ठीक है बेटा? ओके बच्चों, टाइम पूरा हो रहा है तो आप लोग नेक्स्ट क्लास की तैयारी करें। साइड अप। थैंक यू सर। Thank you, Thank you, sir. Saram, sir. थैंक यू सर। साइड अप। थैंक यू सर। साइड अप।